Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now, we'll start lesson number 4, division and unitary method. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 4, division and unitary method. So first we will see what we had learned in this lesson. So we had learned first recall exercise. In the recall exercise we had done the, now here I have one example, 45 divided by 5 equal to 9. So that 45 is known as the dividend, 5 is known as the divisor and 9 is known as the quotient. And after the doing division, some 10 numbers is remain. That is known as the remainder. Thereafter done our division, then we want to check our answer is correct or not. So first we will check remainder is always less than divisor. रिमाइंडर वी नीड ऑलवेज लेस दैन द डिवाइजर, जो हमारा डिवाइजर होता है उससे छोटा होना चाहिए रिमाइंडर. देन अगेन वन प्रोसीजर क्वेश्चन, वट एवर द क्वेश्चन वी विल मल्टीप्लाई बाय द डिवाइजर. क्वेश्चन को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. देन ऐड द रिमाइंडर, उसमें ऐड करेंगे रिमाइंडर. देन आफ्टर एडिंग दिस वी विल गेट द डिविडेंड, फिर हमें डिविडेंड मिलेगा तो हमारा आंसर सही है. लुक एट हियर 9 into 5, 9 into 5 45, 45 plus 3 48. So now look at here I have the 48. Then after we had done the property of division. We had learned 4 property of division. So first property of division is two division fact can be derived from the one multiplication facts. When we are multiply by two numbers, so whatever we are getting the answer, that number we will divide by these numbers, so we will get another number. Means for example 7 into 6 equal to 42. When we are 42 divided by 6, we will get answer is 7, and 42 is divided by 7, so we will get answer is the 6. Suppose in the some example, suppose we are giving the quotient and we are giving the one number. So how to take out then again other number? So for that we will do division here. Then after property number 2. The number is divided by 1, the answer is the number itself. When we are divided by 1 in any number, so we will get itself number. For example 24 divided by 1, we will get the 24. Then property number 3. If the number is divided by itself, the answer is 1. When we are divide itself number, so we will get answer is the 1. For example 324 divided by 324, we will get answer is the 1. Then property number 4. If the 0 is divided by a number, the answer is 0. When we are divided 0 in any number, we will get answer is the 0. Then after we had done the division of 4-digit number, then after we had done the division by a 2-digit number. In the 2-digit number, we are first doing the rounded number, and then after we had take out the answer. Then after we had done the exercise 4.4, question number A we had done, question number B also done. Then question number C. In the question number C, we had done up to 11 number. Now we'll start 12 number. Now look at here one times, all of you, from 11 to 16, 14 and 15. These are the homework for you. Now I am solving 12, 13 and 16. 14 and 15, that both are the homework for you. So now all of you look at here in the notebook. So first we will write numbers. So 12 numbers. So 12 number example is 2487 divided by 63. 2487 divided by 63. Now we want to
divide these numbers. So we had learned in the last class. Now we want to divide these numbers. So first we will rounded numbers 63 and 2487. So now look at here, we will take 24 numbers, but 24 is less than the 63, so we will take 3 number 248. Now look at here. So we will do in the rough 248 divided by 63. 248 divided by 63. So now we will round it these numbers. So this is the 3-digit number, so we will round it in the 100. So 248, that number is between the 200 and 300, but that rounded number is the 200, and 63 rounded number is the 60. Now 0 is cancelled. 20 divided by 6. Now 6 2s are 12, 6 3s are 18. So we are getting the quotient equal to 3. हमने इसको डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना मिल गया, 3 मिल गया. तो यहाँ पे हम रिमाइंडर वगैरह कुछ नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें एक एस्टिमेट नंबर ले रहे हैं. क्यों एस्टिमेट कर रहे, क्योंकि 63 का टेबल हमें नहीं आएगा. अगर हम पूरा टेबल लिखेंगे तो उसमें टाइम जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको राउंडेड करेंगे और जो भी क्वेश्चन है उसके साथ उसको मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे. नाउ 63 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 6 18. सो कितना मिल गया है, 189. अभी हम 63 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन और एक एक्स्ट्रा नंबर लेके इसको मल्टीप्लिकेशन हम करके देखेंगे. 4 इंटू 3 12, 12 are 2, 1 is the carry. Then 6 into 4, 6 into 4 24, 24 plus 1 25. So now 252. 252 is the more than 248. Sorry, yes, 248 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे, 189. सो 189 कौन से प्लेस पे है, 3. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3. देखो यहाँ पे मैं 3 यहाँ पे लिख रहे, ये 2 जगह छोड़ रही, क्योंकि हम क्या ले रहे, 3 नंबर्स ले रहे हैं यहाँ से, इसलिए. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 189. 248 में से 189 को माइनस करें. नाउ 8 माइनस 9 इट इज़ पॉसिबल. सो 18 माइनस 9 9. नाउ यहाँ से कैरी हो गया था, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 हो जाएगा. 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4. 13 में से 9 गया, कितना होता है, सॉरी वन टाइम. 13 माइनस 9 8 4 कितना होता है, सॉरी 13 माइनस 8 होता है 5. 13 माइनस 8 कितना होता है, 5 होता है. एंड यहाँ पे 0. नाउ ब्रिंग डाउन द 7. 597. अभी हम इसके नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे. सो यहाँ पे लिख देंगे 597 और यहाँ पे 63. सो 597 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 500 एंड 600. तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू कितनी है, 600. एंड ये तो यहाँ पे 10 आ रहा है. इसका क्वेश्चन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है. लेकिन अगर हम 63 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 630. अभी हम क्या करेंगे, 630 597 से बड़ा है, तो हम 63 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 63 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है. अगर हम 10 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 630 आता है. इसलिए हम 1 नंबर छोटा लेंगे. 9 इंटू 3 27, 27 चा 7, 2 is the carry. Then 6 into 9 54. 6 into 9 54, 54 plus 2 56. कितना आ गया, 567. कितना आ गया, 567. 9 into 3 27, 27 चा 7, 2 is the carry. 9 into 6 54, 54 plus 2 56. The answer is 567. तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 567. 7 minus 7 0, 5 minus 5 0. देन 9 माइनस 6 3 एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो हमारा क्वेश्चन कितना हो गया है, क्वेश्चन इज 39 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 30. क्वेश्चन इक्वल टू 39 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 30. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर
12. Then now example number 13. Example number 13 is 6561 divided by 81. 6561 divided by 81. 6561 divided by 81. Sorry, 65. That 65 is the small than the 81, so we'll take 3 digit. So यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. 656 divided by 81. 656 divided by 81. सो 656 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है? 600 एंड 700. तो 56 है मतलब ये किसका राउंडेड है? 700 का. एंड 81 किसकी राउंडेड हो जाएगा? 80 की. नाउ 0 0 कैंसल. 70 divided by 8. So 70 is present in the 8 tables. No, what is the nearest value? 64. 64 is the place of 8. तो हम 81 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे. 8 into 1 8 and 8 into 8 64. So answer is 648. So ये 648 656 के नियरेस्ट आता है. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम 8 लिख देंगे और यहाँ पे 648 लिख देंगे. नाउ 6 minus 8. 6 minus 8, it is possible? No. So 16 minus 8. 16 minus 8, how much? 16 minus 8, 8. And 5 minus 5, 0. 4 minus 4, 0. 6 minus 6, 0. Now bring out 1. Now 81 is the place of 81. So 81 minus 81, 0. So हमारा क्वेश्चन कितना मिल गया है? 81 and remainder equal to 0. रिमाइंडर इक्वल टू 0 और क्वेश्चन कितना मिल गया हमें? क्वेश्चन हमें कितना मिल गया? 81 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0. देन एग्जाम्पल नंबर 14 and 15 होमवर्क. सो नाउ लेट्स वी विल राइट एग्जाम्पल नंबर 16. 4231 divided by 49. 4231 divided by 49. So now look at here. 42. This 42 is the small than 49. So we'll take 3 digits. So यहाँ पे हम लिख देंगे 423 and यहाँ पे 49. Now 423 इसकी राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400. और इसकी राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50. सो नाउ 5 8 40. तो अभी हम 49 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन कितना आ रहा है? 8 आ रहा है. नाउ 8 into 9. 8 into 9 how much? 72. 72 are 2. 7 is the carry. Then 8 into 4. 8 into 4 32. 32 plus 7 39. So how much? 392. 392. Now 392 is the greater than 423. 423 से बड़ा आ रहा था. हम क्या करेंगे? 49 को हम 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि ये क्या आ रहा है? इससे बड़ा आ रहा है. 423 से बड़ा आ रहा है. Then now look at here. 7 into 9. 7 into 9 63. 63 3 and 6 is the carry. Then 7 into 4. 7 into 4 28. 28 plus 6. 28 plus 6 34. 28 plus 6 how much? 34. सो कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 343. तो ये इससे छोटा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 7. यहाँ पे हम लिख देंगे 7 और यहाँ पे लिख देंगे हम 343. सॉरी यहाँ पे देखो 423 है और 393 है. ये इससे छोटा है ये. सो हम क्या करेंगे? और एक बड़ा नंबर लेके देखेंगे. 49 मल्टीप्लाई बाय 9 करके देखेंगे. 9 into 9 81. 81 सा 1. 8 is the carry. Now 9 into 4 36. 36
प्लस 8 36 प्लस 8 44। सो 441 आ रहा है, तो ये बड़ा है तो हम यही नंबर लेंगे क्योंकि ये छोटा है। ये क्या है? छोटा है। बाय मिस्टेकली आई टोल्ड दिस इज द बिग नंबर, बस 423 से ये 392 ये क्या है? छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पे कट करें, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 4231 है और यहाँ पे 49 है। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 392। यहाँ पे भी 8 लिखा था, बट वी आर राइटिंग अगेन। सो नाउ लुक एट हियर, 3 minus 2 1, 2 minus 9 it is possible? No. So 12 minus 9, 12 minus 9, 12 minus 9 2, 12 minus यहाँ पे 11 हो जाएगा। सॉरी 12 minus 9 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगेन वन टाइम 4231 है। इसको हम इसके साथ डिवाइड करें, 49 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 8 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 392 हो गया है। 3 minus 2 1 होता है एंड 12 minus 9 3 होता है। नाउ यहाँ पे हमने यहाँ से कैरी लिया था, यहाँ पे 0 हो गया। अभी ब्रिंग डाउन करेंगे 1 को। 311 क्या है? 311 है। तो देखो हमने जब 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ गया? 343 आया था। लेकिन हम एक बार इसको राउंडेड करके ही करेंगे। 311 है और यहाँ पे 49 है। 311 की राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 एंड इसकी 50, 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन कितना आता है? 6 आता है। तो हम 49 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 49 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 54, 54 जा 4, 5 इज द कैरी। देन 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 5 29, कितना आ गया? 294। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और यहाँ पे 294 लिख देंगे। हमने यहाँ पे 6 लिख दिया है, यहाँ पे 294 लिखा है। ठीक है। नाउ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 minus 4, 1 minus 4 it is possible? So no. So we'll write 11, 11 minus 4, 11 minus 4 7। देन यहाँ पे 10 हो गया, 10 minus 9 1 और यहाँ पे 0 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन कितना मिल गया है? 86 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 7। क्वेश्चन कितना हो गया है? क्वेश्चन इक्वल टू 86 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 70। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 16. So from the exercise 4.4 question number C, example number 14 and 15 both are the homework for you. Now let's we will start question number D. In the question number D is filling the blanks to make a sentence true. यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें नंबर पुट करने हैं और ये स्टेटमेंट हमें क्या करने हैं? ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, ये ट्रू करना है। सो नाउ लुक एट हियर, 936 है, 936 है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, यहाँ पे गिव्स है, क्वोशंट 104 है एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0। क्वेश्चन कितना दिया है? 104। अगर हम क्वेश्चन को जो 104 हमें क्वेश्चन है, अगर हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, किसके साथ? 930 के साथ, तो हमें यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। जैसे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम क्या करते थे? हमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ अगर हम यहाँ पे जो नंबर है उसके साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये वाला आंसर मिलता है। तो यहाँ पे भी सेम मेथड यूज़ करेंगे। 936 को 104 के साथ डिवाइड करेंगे। 900
104 को 930 के साथ डिवाइड करेंगे और हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, क्या दिया हुआ है 100, यहाँ पे हम लिख देंगे 936 दिया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर लिखना है और यहाँ पे क्या लिखा है, गिव्स क्वोशंट। क्वोशंट हमें दिया है, क्वोशंट कितना दिया है, क्वोशंट 104 है एंड रिमाइंडर कितना दिया है, एंड रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना दिया है, 0 दिया है। तो हमें क्वोशंट दिया हुआ है और डिविडेंड दिया है, क्वोशंट दिया है और डिविडेंड दिया है। हमें यहाँ पे डिवाइज़र निकालना है। अगर हम इस नंबर को इस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो जो भी हमें आंसर मिलेगा वो यहाँ पे आते, तो हम क्रॉस चेक भी करके उसको सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 104 है, इसको डिवाइड करेंगे 936 के साथ। तो हमें ये दोनों भी टेबल आते हैं क्या, नहीं आते हैं। तो जैसे हमने अभी क्या किया था, राउंडेड किया था, तो दोनों नंबर को हम राउंडेड करके देखेंगे, ठीक है। 104 और यहाँ पे क्या है 936 है। 936 की राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900, और इसकी राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो इसका क्वेश्चन कितना मिल गया, 9। सो 104 को हम 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। 104 को 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 904 को 104 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हमें नियरेस्ट वैल्यू मिलेंगी तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। सो 9 इंटू 4 36, 36 सा 6, 3 इज अ कैरी, 9 इंटू 0 0 0 प्लस 3 3 और 9 कितना आ गया, 936 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और यहाँ पे लिख देंगे 9 और यहाँ पे लिख देंगे 936। तो ये हमें कितना मिल गया है, 0 0 मिल गया है, मतलब हमारा ये नंबर क्या है, 9 है। अभी हम ये भी करके देखेंगे। अगर हम 9 के साथ, अभी हमें क्वेश्चन कितना चाहिए, 104 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 जो नंबर है उसको डिवाइड करके देखेंगे 936 के साथ। ये क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन कितना आना चाहिए, 104। 9 को 936 को 9 के साथ डिवाइड करने के बाद अगर हमें क्वेश्चन 104 और रिमाइंडर 0 है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। सो 9 1 सा 9, 0, नाउ 3 छोटा है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ब्रिंग डाउन द 6, 9 4 सा 36, तो 36 माइनस 36 0, मतलब ये जो हमने आंसर लिखा है 9 ये करेक्ट है। पहले हमने क्या किया है, हमें क्वेश्चन दिया होता, डिवाइज़र दिया था, हमें डिविडेंड निकालना, तो हमने 104 को 930 के साथ डिवाइड किया, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी है। अगर हमें 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 नंबर दिया है, तो अगर उसको यूज़ करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो हमने 936 को 104 के साथ डिवाइड करके दिखा है, तो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया, 9, तो हमने ये 9 लिख दिया है। अभी ये इसको अगर हम इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, क्वेश्चन हमें 104 और रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। देन सेकंड नंबर में क्या दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स 23 गिवन क्वोशंट। हमें क्वोशंट दिया हुआ है, क्वोशंट 15 एंड रिमाइंडर 5। सो दिस आल्सो प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर हमें ये 2 नंबर दिए है तो ये यहाँ पे हम ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल ऑफ यू लुक एट इट, नॉट प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम जब चेक करते हैं तो अगर हमें आंसर चेक करना है तो हम क्या करेंगे,
जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कितना दिया है 15 दिया है, डिवाइज़र कितना दिया है 23 दिया है, और ऐड रिमाइंडर, ये जो तीनों नंबर है, जैसे 23 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड 5 करेंगे तो ये तीनों का जो भी आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड। तो हम पहले ऐसे लिख देंगे क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए डिविडेंड। हमें क्या निकालना है डिविडेंड निकालना है। क्वेश्चन कितना दिया है 15 दिया है, उसके साथ डिवाइज़र कितना दिया है 23 दिया है, और रिमाइंडर क्या दिया है 5 दिया है। अभी हमें डिवाइज़र निकालना है, तो हम क्या करेंगे 15 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड 5 करेंगे। 15 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड 5 करेंगे। सो ये हम रपने करेंगे। सो हम क्या करेंगे 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ। सो नाउ लुक एट इट, 3 into 5 15, 15 are 5, 1 is the carry। 3 into 5 15, 15, 15 plus 3 into 5 15, 15 plus 15 are 5, 1 is the carry। 3 into 1 3 and 4। now 0 will write 2 into 10, sorry 2 into 5 10, 10 are 0, 1 is the carry। 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 345। हमें कितना मिल गया है हमारा क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है 345, सॉरी 345 है, और उसमें 345 है, उसमें ऐड करेंगे 5। यहाँ पे हम लिख देंगे डिविडेंड। 345 में अगर हमने 5 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया है 350। मतलब हमारा जो डिविडेंड है वो कितना मिल गया है 350। तो अभी हमने ये जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है, हमें चेक करना है। हमने तो निकाल दिया, हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 23 को 350 के साथ डिवाइड करके देखेंगे। अगर क्वेश्चन हमें 15 मिल रहा है और रिमाइंडर 5 मिल रहा है, मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम 23 लिख देंगे और यहाँ पे 350 लिख देंगे। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है। सो 2 into 3 6 and 4 46 आ रहा है, ठीक है। 46 ये बड़ा है 35 से, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 23। 5 minus 3 2 और 3 minus 2 1। नाउ ब्रिंग आउट द 0। 220 आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमें पता है कि क्वेश्चन में 5 आता है, तो हम 23 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें। इसको हम राउंडेड करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चन में नेक्स्ट नंबर हमारा 5 आ रहा है। सो 5 into 3 15, 15 जा 5 एंड 2 into 5 into 2 10, 10 plus 1 15 आ रहा है। तो ये इसके नियरेस्ट है। अगर आपको डाउट लगता है तो 23 को फिर 6 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। 6 into 3 18, 18 सा 8, 1 इज़ द कैरी। 6 into 2 12, 12 plus 1 30, 138। ये बड़ा है तो हम क्या लेंगे यही लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो देखो ये हमारा सही है। हमारा डिवाइज़र जो है वो 23 हो गया है, डिविडेंड 350 हो गया है, क्वेश्चन कितना हो गया है 15 हो गया है, और रिमाइंडर 5 हो गया। तो हमने इसको दोनों भी मेथड से सॉल्व किया है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। देन एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में सॉल्व कर रही है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं सॉल्व कर रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 दिस इज द होमवर्क फॉर यू। सो नाउ लुक एट हियर। 1022 divided by 14 gives quotient। क्वेश्चन निकालना है हमें, एंड रिमाइंडर 0 दिया है।
तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन टी निकालना है, तो हम क्या करेंगे 14 को इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1022 है और यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राउंडेड नहीं करेंगे, सबको 14 का टेबल आता ही है। देन आल्सो ऑल ऑफ यू लुक एट हियर इन द 14 टेबल, 14 टेबल में 14 के टेबल में 102 आ रहा है। हम 10 ये छोटा है 14 से, तो वो हम लेंगे 102। तो 14 के टेबल में 102 आ रहा है क्या, नहीं। व्हाट इज़ द नियरेस्ट वैल्यू, 98, 98 इन द प्लेस ऑफ 7। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 98। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 98 लिख दिया है और यहाँ पे 7, क्योंकि 98 कौन से प्लेस पे आता है, 7 वाले प्लेस पे आता है। नाउ 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 4। नाउ 10 माइनस, यहाँ से हमने कैरी लिया तो मतलब 9 माइनस 9 0 हो गया। नाउ ब्रिंग डाउन द 2, 42। नाउ 42 इज प्रेजेंट इन द 14 टेबल, यस इन द प्लेस ऑफ 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे 42 माइनस 42 0। तो देखो जब हमने 1022 को 14 के साथ डिवाइड किया तो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है, 73, और रिमाइंडर ऑलरेडी 0 लिखा है, रिमाइंडर ऑलरेडी 0 लिखा है। नाउ लुक एट हियर, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4। ये आपको होमवर्क है, ये क्या आपको होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पे सेम, यहाँ पे हमें क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर नहीं है, तो ये सिंपल डिवीजन है। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.